میں سو جاؤں یا مصطفیٰ کہتے کہتے کھلے آنکھ صلی اللہ کہتے کہتے میں سو اٹھاتے ہیں تو یوں بولتے ہیں جہاں بانی عطا کر دے بھری جنت ہبا کر دے نبی مختار کل ہے جسے جو چاہے عطا کر دے نبی پرفیکٹ مختار کل ہے جسے جو چاہے عطا کر دے جب ان کے پردادا کا عشق انگرائی لیتا ہے تو میرے دادا پیر پردادا پیر اعلیٰ حضرت یوں بولتے ہیں ارے کون دیتا ہے دینے کو منہ چاہیے دینے والا ہے سچا ہمارا نہیں سرکار تاج الشریعت دنیا کا بے مثال پیر آپ الہ آباد تشریف لائے ایک مولانا اکرم الہ آبادی آپ سے مرید ہوتے ہیں لوگوں نے کہا اشرفی سلسلہ والوں نے لیکن یاد رکھیں سلسلہ اشرفیہ بھی ہمارا ہے بولے جتنے سلاسل ہیں سب ہمارے ہیں بولے سارے بزرگ ہمارے ہیں کہا کہ تاج الشریعت سے ملاقات نہیں ہوتی تشریف رکھا جائے حضور تاج الشریعت سے آپ مرید ہو گئے ہیں ارے اتنے بڑے پیر ہیں ملاقات ہی نہیں ہو لیکن بریلی میں جب میرے تاج الشریعت رہتے تھے تو ایسا لگتا تھا کہ ہندوستان میں ایک چاند بریلی میں بھی ہے ارے بولیں آسمان پہ تو ہے ایک چاند بریلی میں بھی یہ تو اجازت ہمارے بھائی لوگ ان کو بھی کہنا بزرگوں کے ہاتھ سے ہاں آئیے آپ آئیے بھائی آئیے ہاں نہ لائی ادھر لائی اللہ اکبر نعرہ تکبیر اللہ اکبر یا رسول اللہ اعلیٰ حضرت زندہ باد نام تاج الشریعت زندہ باد نام کرب و بلا زندہ باد نام کرب و بلا زندہ باد ہر زمین مٹیارہ زندہ باد مسلمانان مٹیارہ زندہ باد نعرہ تکبیر اللہ اکبر حضور تاج الشریعت سے مرید ہو گئے مولانا اکرم الہ آبادی لیکن دیکھیں لوگوں نے کہا کہ آپ اتنے بڑے پیر سے مرید ہو گئے ان سے تو ملاقات ہی نہیں ہوگی مولانا اکرم الہ آبادی نے آخری فیصلہ رات میں یہ کیا کہ اب میں سلسلہ میں جو بیعت ہوا ہوں وہ توڑ دوں گا رات میں سو گئے آپ نے تاج الشریعت تشریف لاتے ہیں رات فرماتے ہیں مولانا اکرم الہ آبادی تو بیعت توڑنے کے لیے تیار ہو گیا ہے ارے جب جب تجھے دل چاہے اسجد میاں کا نمبر لے لو مجھ سے تمہاری بات ہو جائے گی مولانا اکرم الہ آبادی فرماتے ہیں جب صبح ہوئی تو میرے یہاں ایک انجینئر آئے جو گاؤں میں کسی سے اس سے ملاقات نہیں ہوتی تھی دروازے سے کھڑے تھے میں نے کہا انجینئر صاحب بات کیا ہے انہوں نے کہا کہ خواب میں سرکار تاج الشریعت نے مجھ سے فرمایا کہ اسجد میاں کا نمبر تمہارے پاس ہے یہ نمبر مولانا اکرم الہ آبادی کو دے دو تاکہ وہ جب جب اس کا دل چاہے جی جائیے جی جب جب ضرورت پڑے کہنا کہ وہ فون کرے مجھ سے اکرم الہ آبادی کی بات ہو جائے گی مولانا اکرم الہ آبادی فرماتے ہیں آخری بات جو خواب میں تاج الشریعت سرکار نے فرمایا تھا وہ یہ اے مولانا اکرم الہ آبادی تو بیعت توڑنے کے لیے تیار ہو گیا ہے ارے سن میں اس رات کو جانتا ہوں میں اس رات کو بھی دیکھ رہا ہوں اس رات کی گھڑی کو بھی دیکھ رہا ہوں اور جس زمین پر تو مرید ہوا تھا اس زمین کو بھی دیکھ رہا ہوں میں تجھے دنیا میں بھی کام آؤں گا کل محشر میں بھی کام آؤں گا سبحان اللہ
अकरम इलाहाबादी फरमाते हैं मेरे दिलों की दुनिया में ईमानी नूर पैदा हो गया और फरमाते हैं कि मैं लोगों से मिलना छोड़ दिया और मैं घर में पीर का अपना शजरा पढ़ना शुरू कर दिया। शजरा मिले उससे आप पढ़े। जावेद भाई को ऐसा इश्क मिल गया सरकारे ताजुल शरीयत ये प्रोग्राम है आशिक़े ताजुल शरीयत सुभान अल्लाह। सारे लोग जितने लोग हैं सब सरकारे ताजुल शरीयत के आप यहाँ ना होते, आप गरम बिस्तरों पे होते और जो जिससे मोहब्बत करता है वो उसी के साथ रिलेटेड होता है। बोले एक मिसाल दुनियावी ले लें आप बयान का तरीका। जो लोग अदर कंट्रीज का सफर करते हैं एयरपोर्ट के बाहर जाएं बहुत गाड़ियां लगी रहती हैं महंगी गाड़ियां BMW मर्सिडीज कार, लेकिन आप जाएं देखें उसमें पीछे कुत्ता पड़ा रहता है और वो जबान हिलाता है। ऐसा है कि नहीं? जबान हिलाता रहता है। आप पूछे यार इतनी महंगी गाड़ियां, आप पूछे कुत्ते बता इतनी महंगी BMW कार है, क्या ये कार तेरे लिए बनाया गया? कुत्ता जवाब देगा नहीं मेरे लिए नहीं बनाया गया। तो आप पूछे कुत्ते बताओ तू बैठ के घूमता कैसे है? तो जवाब देगा हमने कार के मालिक से राब्ता बना लिया है, जहाँ जहाँ कार का मालिक जाता वहाँ वहाँ मैं जाता हूँ, जहाँ जहाँ मालिक के कार जाता है वहाँ वहाँ मैं जाता हूँ। अब मुझे अर्ज कर लेने दिया जाए एक नफीस कुत्ता ने जब कार के मालिक से राब्ता बना लिया है, जहाँ जहाँ मालिक के कार जाता है वहाँ वहाँ वो दुनियादार कुत्ता जाता है, लेकिन सुन लिया जाए हमारा जो राब्ता हो किसी और से न हो, हमारा राब्ता हो तो सरकारे ताजुल शरीयत से हो, मुफ्ती आज़म हिंद से हो, आला हज़रत से हो, गरीब नवाज से हो, मखदूम सिमला से हो। हमारा जो राब्ता हो इमाम हुसैन से हो, आमना के लाल से हो, हम दुनिया में भी कामयाब रहेंगे महशर में भी कामयाब रहेंगे। राब्ता आप अपना बनाएं मजबूत स्ट्रॉन्ग राब्ता, तो जिससे दुनिया में भी फैज मिले और दुनिया से जाने के बाद भी फैज मिल जाए। बोले इसलिए कि अल्लाह के वली जब जमीन पे होता है उसे एक पावर, जब जमीन में चले जाते हैं तो डबल पावर मिल जाता है। बोले उन्हें काम दिया जाता है, जिस तरह सियासत में काम दिया जाता है, ये मुखिया ये विधायक ये मंत्री ये गृह मंत्री ये, इसी तरह वलियों को भी काम दिया जाता है और जिन पे उनका फैज हो जाता है दुनिया में, वो जिंदगी में उनके साए में रहकर जमीन पे बैठकर वो भी फैज बांटते हुए नजर आते हैं। आपने देखा होगा बहुत से लोग आसेब ज़दा होते हैं, जादू अटैक शैतानी खबीस के अटैक में होते हैं, बहुत सी औरतें नौजवान, लेकिन कुछ ऐसे फकीर से पल्ला पड़ता है, एक बार फूक देते हैं तो सारा मामला दूर हो जाता है और वो कामयाब हो जाते हैं। क्यों? इसलिए कि वलियों के फूक में वो पावर है, वो चाहे तो पहाड़ को भी फूक दे तो वो रेजा रेजा हो जाए। याद रखें ईमान को मजबूत कर लें। सरकारे ताजुल शरीयत के नाम का कोर्स मना रहा है, जलसा मना रहा है। एक हदीस तो सुनाऊंगा, बोलेंगे एक हदीस आज मुआशरे में देखें बुखारी शरीफ जिल्द सानी किताबुल निकाह के मेरे पास बहुत हदीस है, कई सहाबियों के जो हिस्ट्री अगर आप सुनेंगे तो दिलों की दुनिया में पैदा होगा। लेकिन बोले सुभान अल्लाह 2 से 4 मिनट ले लें। हमको नारा बहुत लग गया, हमारे यहाँ बहुत नारे लग गए, लेकिन नारों की जरूरत नहीं है, काम की जरूरत है। बोले आज शादियों में क्या है कि जितना सस्ता जानवर नहीं बिकता उससे ज्यादा बच्चा बिक रहा है, लड़का बिक रहा है। लेकिन इतना जानते हैं कि जिस इस्लाम के पानी ने जहेज को हराम करार दिया, उसके बावजूद हम उस हराम को अलल ऐलान लेते हैं, अलल ऐलान लेते हैं। लेकिन सुने हजरत रबिया असलमी एक हदीस में है
दूसरी हदीस में हजरत अब्दुल्ला इब्न असवद है, जो इस्लाम की तारीख पढ़े तो जंग वहद की तारीख आती है। हजरत रबिया अस्लम गरीब है, आप पहुंचते हैं नबी की बारगाह में, या रसूल अल्लाह मुझे शादी की जरूरत है। बोले मैं शादी करना चाहता हूँ। हजरत नबी करीम ने फरमाया महर है। अर्ज करते या रसूल अल्लाह महर तो नहीं है, लेकिन सहाबा जानते कि कोई दे या न दे मेरे रसूल जरूर दे देंगे। बोले सहाबा का यकीन था कोई दे या न दे मेरे रसूल जरूर दे देंगे। इसी अकीदे को तो मेरे इमाम आला हजरत इरादा करते हैं और आखिरी कील ठोक के कहते हैं कौन देता है, देने को मुंह चाहिए, देने वाला है सच्चा हमारा नबी। याद रखे, मैं तो कहता हूँ कि जो लोग सियासत में हैं वो लोग भी ऐलान करें जहेज बंद करो, इसलिए कि आज गांव में जो लोग चाहे किसी भी धर्म से रिलेटेड हो, मुझे कोई एतराज नहीं है, ये देश सबका है, चाहे हिंदुस्तान का आदमी हो या नेपाल का हो। याद रखें जमीन पे जो हुकूमतें मिली है, पावर मिला है, इस पावर को धार्मिक लेवल से भी लाया जाए, मजहबी लेवल से भी रिलेटेड किया जाए, इसलिए कि इस्लाम के पानी का कानून है कि बेटियों की शादियों में जहेज का डिमांड न करो, इसलिए कि ये हराम है। और याद रखे ये किसी और का फरमान नहीं है, ये आमना के लाल का फरमान है। आप याद कर लें, अल्लाह ने बेटा दिया है तो मेरे बेटे की जो शादी होगी तो पैसे का डिमांड नहीं होगा, कार का डिमांड नहीं होगा, बाइक का डिमांड नहीं होगा। अरे मेरे बेटे जब शादी करने जाएंगे तो लोग देखकर ये बोल उठेंगे जाने वाला कोई और नहीं है, मुस्तफा का गुलाम शादी करने जा रहा है। ये कब होगा? जब बेटा पढ़ा लिखा होगा। बोलिए सुभान अल्लाह। जब बाप भी पढ़ा लिखा होगा, 5 लाख। अब माशरे में लोग पढ़े लिखे होंगे। आज लोगों को कहिए कुरान पढ़ा, बहुत कम पैसा कमाएगा, कुरान का है पढ़ाएं। याद रखें इस हिंदुस्तान में बहुत से पंडितों ने मुकम्मल कुरान को याद करके बैठे हैं। मालूम है आपको? मैं आला हजरत की बारगाह में 2008 में गया था, इतना बड़ा मेरे पास मोबाइल था, उस मोबाइल से मैं तस्वीर ले रहा हूँ। एक पंडित बगल में बैठ के कुरान पढ़ रहे थे, उन्होंने कहा मौलाना ये हराम है, जिनके मज़ार की तस्वीर लेते हो इन्हीं का फतवा है। बड़े बड़े बाल पंडित कुरान हाथ में क्या कह रहे हैं कि जिनके मज़ार की तस्वीर ले रहे हो इन्हीं का फतवा है कि ये हराम है। याद रखें जिन्हें आला हजरत के फतवे का इल्म हो उसके पास इल्म कितना होगा। अरे रिसर्च करने वाले आज भी दुनिया में मौजूद हैं, इसलिए कि रात में ऐसे ही खाकर न सोए, कम से कम कुछ किताबों की औरात को उलट कर जरूर सोए। ये मोबाइल, ये सोशल मीडिया ने लोगों को तबाह कर दिया है, बर्बाद कर दिया है। क्यों? इसमें इंसान देखता है तो दुनिया की तारीख देखता है। अरे देखना है तो आमना के लाल का फरमान पढ़ ले, पढ़ना है तो फारूक आजम का फरमान पढ़ ले, सिद्दीक अकबर का फरमान पढ़ ले, बुजुर्गों को वाक़ियात को पढ़ ले। याद रखें दुनिया भी समझ जाएगा, उखवा भी समझ जाएगा। आज माशरे में क्या मोबाइल लिया 50,000 का, 1 लाख का, लेकिन उसमें कुरान शरीफ नहीं है, कुरान की तफसीर नहीं है। मैं अर्ज कर रहा था कि आज कहिए हजरत लोगों को, बच्चों को कुरान पढ़ा, हजरत पैसा बहुत कम कमाए, लेकिन कंप्यूटर पढ़ लेगा, इंग्लिश पढ़ लेगा, यूनिवर्सिटियों में पढ़ लेगा, डॉक्टर बन जाएगा, इंजीनियर, पायलट, बहुत पैसा लाएगा। सुने, जरूरी पैसे की जरूरत है दुनिया में जिंदगी गुजारने के लिए, लेकिन इसी जमीन पे कुछ ऐसे लोग हैं जिन्हें पैसे की जरूरत नहीं, पैसों को उनकी जरूरत है। अरे बोले, डॉक्टर इकबाल ने कहा था ना, खुदी को कर बुलंद इतना कि हर तकदीर से पहले खुदा बंदे से पूछे कि बता तेरी रजा क्या है। बेशक हमारे
आप अपने बच्चों को डॉक्टर ना बनाए, मैं कहता हूं आप डॉक्टर भी बनाए, इंजीनियर भी बनाए, पायलट भी बनाए, लेकिन पहले सीनों में कुरान की तालीम दे दे, कुरान की तालीम दे दे, ताकि आपका बेटा जब पढ़ लिख करके हिंदुस्तान के इस देश के चलाने में जब हिस्सा ले, तो वहां पर आपका बेटा कहीं खता न कर जाए, न इंसाफी के पटरियों पे उसका पांव न गामेजन हो जाए। इसलिए पहले कुरान की तालीम दे दे, ताकि आपका बेटा जब पार्लियामेंट में बोले तो दुनिया बोलने पे मजबूर हो जाए, ये बोलने वाला कोई और नहीं है, ताबे शरिया का गुलाम बोल रहा है, रफ़ी फैज बोल रहा है, ताकि आपका बेटा बोले तो वहां पे हक्कानियत के जुमले का बौछार हो जाए, और देश के लिए माल की जरूरत पड़े तो माल भी पेश कर दे, और जान की जरूरत पड़े तो जान भी पेश कर दे। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। तब होगा जब आपका बेटा पढ़ा लिखा होगा और इश्क होगा बुजुर्गों का, बोले इश्क होगा इस मुल्क की मिट्टियों से, मोहब्बत होगी इस मुल्क की मिट्टियों से, पढ़ा होगा दास्तान कि हमारे बाप दादाओं ने इस मुल्क में अपनी गर्दनों को कटाया है, काला पानी जजीरा मैंड में भेजा अपने सरों को, फतवा देने के बाद गर्दन तो कटा दिया लेकिन गर्दन को झुकाया नहीं, गोलियों पे चढ़े लेकिन अपना फतवा रद्द नहीं किए, रुजू नहीं किए। तो पढ़ेंगे तब तो अपने बाप दादा के हिस्ट्री याद रहेंगे, तब तो वो जानेंगे, तब तो इस मुल्क को अच्छे तरीके से चलाएंगे। पहले आप कुरान की तालीम दें, उसके बाद दुनियावी तालीम दे दे, आपका बेटा भी कामयाब हो जाएगा, आप भी कामयाब हो जाएंगे। जावेद भाई ने प्रोग्राम किया, याद रखिए कहीं ना कहीं तो उनको सोहबत होगी अच्छे लोगों से, हमारी मुलाकात नहीं है, लेकिन मैं इतना जानता हूँ कि सरकार ताबिर शरीयत का उस बंदे पे फैल जारी हो गया और आप सब पे भी हो गया है, बोले सुभान अल्लाह। लेकिन उन्होंने इतनी मेहनत से मोहब्बत से है भी नहीं, लेकिन इश्क ऐसे अपने पीर से मुर्शिद से मोहब्बत। याद रखिए अल्लाह के वली जमीन पर भी काम आते हैं, जमीन में भी। आला हजरत ने लिखा मलफूजात में, इमाम फखरुद्दीन राजी, तफसीर राजी बहुत मोतबर तफसीर है। इमाम राजी जब आपसे शैतान ने नज़र के आलम में सवाल किया, बहुत मुनाज़िर किए, खुदा कितने, आपने कहा कि खुदा एक है, बोले और कुरान कहता है कुल हुवल्लाहु अहद, है हबीब आप कह दें कि अल्लाह एक है, न उसका कोई बाप है, न बेटा है, न कोई नहीं है, वो परवरदिगार है, बोले वो रब्बुल आलमीन है। लेकिन देखें अल्लाह एक है, इमाम फखरुद्दीन राजी फरमाते हैं दलील मांगा लाओ, आपने एक नहीं दो नहीं 360 दलील, शैतान मालूम मजबूत रह चुका था, रद्द कर दिया। लेकिन देखे इल्म काम नहीं आया, काम आया तो बुजुर्गों का फैजान आया, बोले सुभान अल्लाह, अरे बोले सुभान अल्लाह। आपके पीर नजमुद्दीन कुबरा ने कहीं मकाम पे वज़ू कर रहे थे, वहीं से फरमाते हैं बेटा फखरुद्दीन राजी क्यों नहीं कह देते हो कि बगैर दलील के खुदा को एक मान। आपने बता दिया, पीर के फैजान से आप कामयाब हो गए। इमाम आजम अबू हनीफा देखे, बोले सुभान अल्लाह। जाते लोग कहते हैं ये सुन्नी बैलवी मजार पे क्यों जाते हैं, ये हराम है, ये शिरक है, ये बिदा है। लेकिन इमाम आजम अबू हनीफा फिर इमाम आप फरमाते हैं, इमाम आजम अबू हनीफा फरमाते हैं मैं उस वक्त तक के कामयाब नहीं हुआ जब तक कि मैंने जाफर सादिक के कदम को नहीं चूम लिया। जाफर सादिक है कौन? इमाम बाकर के बेटे हैं। इमाम बाकर है कौन? इमाम ज़ैनुल आबिदीन के बेटे हैं। ज़ैनुल आबिदीन है कौन? इमाम हुसैन के बेटे हैं। हुसैन पाक है कौन? अली मुर्तज़ा के बेटे हैं। अरे वो अली के जहाँ से विलायत के गिरने फूटती है, जो अली का गुलाम नहीं है क़यामत तक वली बन ही नहीं सकता। सुभान अल्लाह। बोल कौन रहे? इमाम आज़म। जब तक चौखटों पे चौखटों की दहलीज पे सर को नहीं रखा, उस वक्त तक के कामयाब नहीं हुआ।
बहुत से ऐसे वाकयात मेरे पास और बहुत से ऐसे हदीसें के पास, लेकिन एक हदीस सुने, बोलिए सुभान अल्लाह। एक बार और मचल के बोले सुभान अल्लाह। एक हदीस बहुत तेजी के साथ पहुंचे हैं मुस्तफा की बात करते, या रसूल अल्लाह जरूरत है, लेकिन मेरे नबी को इख्तियार है, बोले जिसे जब चाहे जितना चाहे दे दे। कुरान कहता है वअम्मस्साइल फला तन्हर, बोले सुभान अल्लाह। अरे कुरान का सुनना भी सवाब, पढ़ना भी सवाब, बोले सुभान अल्लाह। ऐ हबीब, आपकी बारगाह में कोई मांगने वाला है, आप भीड़ को मत, जो मांग रहा है आप दे दीजिए, बोले अता कर दीजिए। मेरे नबी ने भेजा मदीना में, जाओ फला के पास बेटी है, कहना आया नहीं हूँ, मुस्तफा ने भेजा है, बोले मुस्तफा ने भेजा। आप गए दरवाजे को बस कर दिया, आवाज आई कौन? कहा मैं रबिया असलमी। क्यों आए? कहा मैं शादी का पैगाम लेकर आया, बोलिए ना सुभान अल्लाह। के तौर पे कोई आदमी किसी के घर में नौकर हो और वो महंगी गाड़ी से कार से किसी सेठ के यहाँ जाए, तो नौकर हो किसी के यहाँ और सेठ के यहाँ जाए और पूछे कि रिश्ता लेकर आया, तो यही सोचेगा ना कि अपने मालिक के लड़के के लिए आया होगा, जिसके यहाँ ये काम करता है। रबिया असलमी कौन है? किसके लिए? आप फरमाते हैं मेरे लिए। ऐसा सुनना था। उस जिनके घर पे गए थे दरवाजे पे, वो तो सोच रहे थे कि मेरी बेटी उम्मुल मुमिनीन बन जाएगी, आमना के लाल के लिए आए होंगे, बोले ना। लेकिन साहबी रसूल फरमाते हैं मैं अपने लिए आया। इतना सुनना था। हर दौर का अमीर आदमी मगरूर होता, बोला कि आप गरीब हैं, मैं अमीर, मेरी बेटी खूबसूरत, लेकिन याद रखिए पीछे से वो बेटी बाप के कांधे पे हाथ रखती है और कहती है मेरे बाप, आप ये न देखे कि आने वाला आदमी गरीब है, यतीम है, मिस्कीन है, देख लेके भेजने वाला गुंबदे खजरा की मकी है। ऐ मेरे बाप, कल जब रब तबारक व तआला मैदाने महशर बर्पा करेगा, मेरी बहुत सी सहेलियां होगी, कोई कहेगी मेरे रिश्तों को सिद्दीक अकबर ने लगाया है, कोई कहेगी फारूक आजम ने लगाया है, कोई कहेगी उस्मान गनी ने लगाया है, कोई कहेगी अली मुर्तजा ने लगाया है। ऐ मेरे बाप, उसी मैदाने महशर में मैं कह दूंगी कि मेरे रिश्तों को रसूल आज़म ने लगाया है। सहाबा का ईमान था, कोई दे या ना दे, मेरे नबी मुझे जरूर दे देंगे। तभी तो बरेली के इमाम बोल उठे, कौन देता है? देने को मुँह चाहिए, देने वाला है सच्चा हमारा। इंशाअल्लाह फिर कभी मुलाकात हुई, मेरी लंबी तकरीर होगी और मुलाकात भी होगी। एक घंटा से और आ गया ये मेरे मुकद्दर में, ये वक्त, ये साथ है, ये लम्हा मेरे मुकद्दर में मयसर था, मैं आ गया। बहुत खुशी हुई आप लोगों से मिल करके, अच्छा लगा। इश्क में शायर इनकलाब हज़रत मासूम रज़ा संगल साहब किबला ने अच्छा कलाम पढ़ा और शायर इस्लाम हज़रत चाहत मुज़फ़्फ़रपुरी साहब किबला ने भी बहुत अच्छा पढ़ा। एक 1.5 घंटा तो ये मैं अभी कुछ कर रहा हूँ, बोलिए ना सुभान अल्लाह। तो इन लोगों ने हाँ जाइए आप, ठीक है हाँ कहेंगे। ये बहुत देर बैठ गए, नहीं करने पे आया, लेकिन इश्क में 2 शेर मैं भी पढ़ूंगा कि कोई मंशूर